زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر کیٹیگری رام زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین، ہم آپ کے لیے پروگرام زیرو زبر سیزن 4 لے کر آئے ہیں. اس بار زیرو زبر سیزن 4 میں ہمارے ساتھ 54 ٹیم ہوں گی. روزانہ کی بنیاد پر 3 ٹیموں کے درمیان یہ مقابلے ہوں گے، جن میں سے روزانہ ایک ٹیم سلیکٹ ہوتی چلی جائے گی ہمارے سپر 6 مقابلوں کے لیے. 18 دن کے بعد جو 19واں مقابلہ ہوگا اس سے ہمارے سپر 6 مقابلے شروع ہوں گے، جن سے ہمیں تلاش ہوگی 6 ٹیموں کی، جن کے درمیان ہم کروائیں گے سیمی فائنل، اور ان سیمی فائنل سے ہمیں حاصل ہوں گی 2 ٹیمز جن کے درمیان ہم گرینڈ فنالے کریں گے، اور پھر ہمیں انشاءاللہ زیرو زبر سیزن 4 کی ونر ٹیم وہ بھی مل جائے گی. تو ہمارے ساتھ شامل رہیے اور دیکھیے اور جانیے کہ اس بار ہمارا سیزن 4 کون ون کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. تو آج بھی ہمارے ساتھ 3 مختلف اسکولوں سے مختلف 3 ٹیم شامل ہوں گی، جن کے درمیان انشاءاللہ آج بھی مقابلے ہوں گے. آئیے بلا تعطل چلتے ہیں اپنے بچوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج کون کون سے اسکولز ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باری باری اپنی اسکول کا نام بھی بتائیں گے، اپنا نام بھی بتائیں گے، اور کیا کرتے ہیں ذرا یہ بھی بتائیے. جی نام عبدالصمد، اسکول فیضان اکیڈمی. ارے ماشاءاللہ، فیضان اکیڈمی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اور عبدالصمد بھائی کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 5. کلاس 5 کے اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. جی نام ہے عبدالقدیر، میں کلاس 7 میں ہوں، اسکول فیضان اکیڈمی. جی میرا نام ارحم ہے، میں کلاس 6 سے ہوں، اسکول فیضان اکیڈمی. جی اگلے اسکول کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام عبدالہادی ہے، میں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول کلفٹن BHS سے ہوں. ماشاءاللہ، کلفٹن BHS برانچ سے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. جی میرا نام حمزہ علی ہے، میں کلاس 6 سے ہوں، میں بھی کلفٹن BHS سے کیمپس سے ہوں. تیسرے کنٹیسٹنٹ. My name is Mohammad Naufal Raza. I study in Darul Madina class 6. ماشاءاللہ. جی میرا نام محمد ارم اختر ہے، میں کلاس 6 سے ہوں. چلیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا. میرا نام محمد جنید عالم ہے، میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں. آپ کو بھی خوش آمدید. جی میرا نام مرزا حیدر بیگ ہے، میں کلاس 8 کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ، مختلف کلاسز کے اسٹوڈنٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے اندازہ لگائیے. جی جناب، پہلے راؤنڈ میں ہونا کیا ہے، تھوڑا سا پہلے میں آپ کو یہ گائیڈ کر دوں. آپ کے سامنے کوئنز رکھے ہوئے ہیں، دکھائیے گا ذرا تینوں ٹیمز. جی ان کوئنز کو آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ ایک ایک کوئن 10 نمبروں کا ہے. کتنے پوائنٹس کا ہے؟ یس، 10 پوائنٹس کا یہ ایک کوئن ہے، اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. میں ایک سوال آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھاؤں گا. آپ نے وہ سوال دیکھ کر آپشنز بھی دیکھنے ہیں. میں آپ کو 3 آپشن بھی دوں گا، A, B اور C. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب A ہوگا تو آپ نے میکسیمم کوئن A میں گرانے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب B ہے تو پھر آپ نے B میں کوئن گرانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جواب C ہے تو آپ نے C میں کوئنز کو گرانا ہے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کنفیوز ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا آپشن درست ہے، تو پھر آپ تھوڑے کوئنز تینوں میں بھی ڈال سکتے ہیں، 2 میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور 1 میں بھی ڈال سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ تو شروع کریں. جی جناب، شروع کریں گے. فیضان اکیڈمی والوں سے پہلا سوال ہوگا، پہلا راؤنڈ ہے. آئیے دیکھتے ہیں آپ کے لیے ہمارے پاس سوال کیا ہے. جی جناب، فیضان اکیڈمی والوں سے پہلا سوال، تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشن بتاؤں؟ جی بتائیے. آپشن A 2، آپشن B 3، آپشن C 4. اب آپ کو جو لگتا ہے اس میں آپ کوئنز ڈال دیجئے. آپس میں مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں. تینوں آپشنز کا استعمال ہو رہا ہے. ناظرین اسکرین پر نظر آ رہا ہے، بچوں نے تینوں آپشن کا استعمال کیا. کس آپشن میں آپ نے کتنے کوئنز دیے ہیں؟ A میں 4 4. B میں دیے ہیں
3 और सी में भी दिए हैं 3। यस जी जनाब, ऑप्शन ए में 4 कॉइन्स गिराए हैं, ऑप्शन बी में आपने 3 कॉइन्स गिराए हैं और ऑप्शन सी में आपने 3 कॉइन्स गिराए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सही जवाब क्या है। जी ऑप्शन बी 3 तयम्मुम के 3 फराइज हैं। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है फैजान एकेडमी ने। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है अगला सवाल करने की। अगला सवाल आपके लिए फैजान एकेडमी, देखिए स्क्रीन पर। 5 नमाजों की अजानो इकामत का जवाब देने पर मर्दों को कितनी नेकियां मिलती है? ऑप्शन बताऊं आपको? जी, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 2 करोड़ 24 लाख, ऑप्शन बी 3 करोड़ 24 लाख, ऑप्शन सी 3 करोड़ 12 लाख। जी जनाब, ऑप्शन बी का ज्यादा इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। चलें जी, ऑप्शन ए में भी कुछ कॉइन्स गिरना शुरू हुए और सी में भी। जी जनाब, हमें बताइए, आपने कॉइन्स का इस्तेमाल कर लिया है। किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आपने दिए हैं? ए में 3, बी में 5, सी में 2। चलें जनाब, ऑप्शन ए में 3 कॉइन्स इन्होंने दिए हैं, ऑप्शन बी में 5 कॉइन्स दिए हैं और ऑप्शन सी में 2 कॉइन्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है। नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी 3 करोड़ 24 लाख नेकियां उसके नामाए आमाल में लिखी जाती हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 50 नंबरों का इजाफा किया है फैजान एकेडमी की टीम ने। बारी है अगला सवाल देखने की, देखते हैं स्क्रीन पर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने मुअज्जिन थे? ऑप्शन दिखाऊं आपको? जी, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5। जी, किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स आपने इस्तेमाल किए हैं? ए में 3, बी में 5, सी में 2। आइए आपको दिखाते हैं कि सही जवाब क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 5। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 5 मुअज्जिनीन थे। 20 नंबरों का इजाफा किया है फैजान एकेडमी ने। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं फैजान एकेडमी की टीम से आखिरी सवाल करने की तरफ। देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए राउंड 1 का आखिरी सवाल क्या है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल की उम्र में विसाल फरमाया? ऑप्शन ए 70 साल की उम्र में, ऑप्शन बी 63 साल की उम्र में, ऑप्शन सी 75 साल की उम्र में। चलें जी, ऑप्शन बी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए में आई थिंक सिर्फ एक ही कॉइन दिया है आप लोगों ने, ए और सी में। ए और सी में सिर्फ एक कॉइन और बी में आपने 8 कॉइन्स डाल दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं सही जवाब क्या है। सही ऑप्शन था ए 70 इयर्स। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 70 साल की उम्र में दुनिया से रहलत फरमाई। आपने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। जी जनाब, फैजान एकेडमी से राउंड 1 के सवालात पूरे हुए। बारी है दारुल मदीना की टीम से सवालात करने की। क्या आप लोग तैयार हैं? जी। चलें जी, बिल्कुल तैयार हैं। तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए हमारे पास पहला सवाल क्या है। जी, सूरह रहमान में कितनी आयतें हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 75। आपस में मशवरा भी कीजिए, लेकिन जल्दी फैसला कीजिए। जी कर लिया। जी बताइए, किस ऑप्शन में कितने कॉइन्स दिए हैं? सी में 5 है, बी में 3 है, ए में 2 है। ए में 2। आइए आपको दिखाते हैं सही ऑप्शन क्या है। जी, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 78। 20 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। माशाअल्लाह। बारी है अगला सवाल करने की। जी दिखाइए दूसरा सवाल। सूरह कलम की आयत नंबर 51 किस चीज से हिफाजत के लिए मुफीद है? ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी नजरे बद, ऑप्शन सी चोरी। ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉइंस गिराएंगे ऑप्शन में ए, बी और सी। जी बताइए, किस ऑप्शन में कितने कॉइंस आप लोगों ने गिराए हैं? ए में 5 और बी में भी 5। आइए आपको दिखाते हैं सही ऑप्शन क्या है। जी जवाब दिखाइए। ऑप्शन बी नजरे बद
50 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। माशाअल्लाह, वेल प्ले, बहुत अच्छा आपने फैसला किया। बारी है अगला सवाल की, और अगला सवाल आइए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। जी, सवाल है, कयामत कायम होने से पहले किस अजीम शख्सियत की तमाम दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाएगी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत जुल्करनैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक ही ऑप्शन में ज्यादा कॉइंस गिरते नजर आते हैं। लगता है इसका जवाब इन लोगों को अच्छे अंदाज के साथ मालूम है। जी, ये अंदाजा नहीं लगाया बल्कि शायद कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है, ऐसा ही है? जी। किस ऑप्शन को इस्तेमाल किया आपने? सी। अरे जनाब, इतना कॉन्फिडेंट है, आइए हम आपको दिखा देते हैं कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था। जी, सही ऑप्शन था हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु। 100 पॉइंट्स हासिल किए हैं जनाब। वेरी गुड, वेल प्ले, माशाअल्लाह। दारुल मदीना, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। किस नमाज में अजान और इकामत और खुतबा नहीं है? जवाब के लिए ऑप्शंस देखिए जी। ऑप्शन ए नमाज जुमा, ऑप्शन बी नमाज ईद, ऑप्शन सी नमाज जनाजा। जी, दारुल मदीना की टीम आखिरी फैसला करने जा रही है। आखिरी अंदाजा या शायद कॉन्फिडेंटली जवाब। वंस अगेन ऑप्शन सी में ज्यादा कॉइंस गिरते नजर आ रहे हैं। सारे के सारे कॉइंस आपने सी में डाल दिए हैं। यस जी। ऐसा क्यों किया है? हमने पढ़ा था इसके बारे में। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है? आइए, जो पढ़ रखा है कितना सही पढ़ा है दिखाते हैं हम आपको स्क्रीन पर। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक मर्तबा फिर 100 पॉइंट्स का इजाफा किया है। दारुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में बेहतरीन प्ले किया। बेहतरीन आपने पहले राउंड में नंबर गेन किए हैं, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अब बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम की। देखना यह है कि आप कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। जी, आपके लिए देखिए पहला सवाल। कुरान पाक की एक सूरत सूरह तगाबुन है। तगाबुन किस चीज का नाम है? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए कयामत, ऑप्शन बी कब्र, ऑप्शन सी दोज़ख। तीनों ऑप्शंस में कॉइंस गिरते नजर आ रहे हैं। हमें बताएंगे किस ऑप्शन में कितने कॉइंस गिराए हैं। ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 3। आइए आपको दिखाते हैं सही ऑप्शन कौन सा था। ऑप्शन ए कयामत। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है टीम मोहम्मद अली ने अपने स्कोर में। जी जनाब, अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। फी अमदिम मुमद्ददा, ये किस सूरत की आयत है? कुरान पाक की एक सूरत जिसकी ये आयत है, आपने ये बताना है कि ये किस सूरत की आयत है। देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या हैं। ऑप्शन ए सूरह हुमज़ा, ऑप्शन बी सूरह कारिया, ऑप्शन सी सूरह आदियात। फी अमदिम मुमद्ददा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तीनों ऑप्शंस में कुछ कुछ कॉइंस गिराए हैं, लेकिन एक ऑप्शन में कुछ कम कॉइंस गिरे हैं। देखते हैं क्या ये वही ऑप्शन तो नहीं जो दुरुस्त था। जी, पहले तो बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइंस आप लोगों ने गिराए हैं। ए में 2, ऑप्शन बी में 5, ओके, और ऑप्शन सी 3। देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सूरह हुमज़ा। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है। बारी है तीसरा सवाल करने की। दिखाइए स्क्रीन पर। हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। हाशिम का माना बताइए। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए रोटियों का चूरा करने वाला, ऑप्शन बी लोगों को जमजम पिलाने वाला, ऑप्शन सी मेहमान नवाजी करने वाला। जी बेटा बताइए। बी में 5 और सी में 5। आइए देखते हैं हमारे बच्चों ने जो फैसला किया है वो अंदाजा कितना दुरुस्त हुआ है। नहीं जनाब, सही जवाब था रोटियों का चूरा करने वाला। और इस ऑप्शन में आपने कोई कॉइंस नहीं गिराया, कोई पॉइंट आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा ना करो भाई, कुछ ना कुछ तो दिया करो। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स गिराएं, ताकि हर सवाल के जवाब में कुछ ना कुछ आप जरूर यहाँ से पॉइंट्स गेन करने में कामयाब हो जाएं। आखिरी सवाल की बारी है। जी दिखाइए इन लोगों के लिए आखिरी सवाल हमारे पास क्या है। रुकू, सुजूद, कौमा और जलसा में कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना लाजिम है। बताइए शरीयत में इसे क्या कहा जाता है। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन ए अमल कसीर,
ऑप्शन बी तादील अरकान, ऑप्शन सी खुरूज बिसुनईही। आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा बच्चों के लिए, बहुत सारे बड़े लोगों को भी ये समझ नहीं आया होगा, इसीलिए कहते हैं नमाज पढ़िए मगर सीख कर पढ़िए। कैटेगरी रॉन्ग। बच्चों ने अंदाजा लगाया है, तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया है। किस ऑप्शन में कितने कॉइंस गिराए हैं हमें बताएंगे। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30 और सही जवाब क्या है दिखाइए जी हमें। ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है बच्चों ने अपने स्कोर में। सुभान अल्लाह। जी इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और हम भी जानते हैं कि बच्चों ने पहले राउंड के आखिर तक कितने पॉइंट्स गेन किए हैं। फैजान एकेडमी ने पहले राउंड के आखिर तक बनाए हैं 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना ने अनबिलीवेबल कारकर्दगी दिखाई है और हासिल किए हैं 280 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली से लगता है कुछ कंफ्यूजन हुई है, अंदाजे सही नहीं लगे हैं और इनका स्कोर हुआ है 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी रॉन्ग। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अगला राउंड हमारे पास मौजूद है और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड है जिसका नाम है मिसिंग वर्ड्स। जी मिसिंग वर्ड में होगा ये कि आपको हम सवालात करने से पहले कुछ अल्फाज दिखाएंगे जो आपने याद कर लेने होंगे और फिर हम आपको एक ऐसा सवाल दिखाएंगे कि जिसमें से कुछ अल्फाज या एक आधा लफ्ज ये मिसिंग होगा जिसको आपने तलाश करना होगा उन अल्फाजों में से जो हम आपको दिखा चुके होंगे। अगर आपने सही तलाश कर लिया तो आपके स्कोर में इजाफा होगा 10 पॉइंट्स का और अगर आपने गलती की तो आपके स्कोर से माइनस हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। जी इज दैट क्लियर? Yes. जी फैजान एकेडमी वालों के पहले सवाल के लिए अल्फाज दिखाइए। सजावार, दुश्वार, हफ्तावार, इक्तिदार, खबरदार। चलें जी देखते हैं खबरदार होना है या इक्तिदार मिलना है। जी सवाल दिखाइए। मिसाल देना आसान है, मिसाल बनना क्या है? दुश्वार। आपने कहा दुश्वार। दिखाइए जी सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 नंबरों का इजाफा किया है फैजान एकेडमी की टीम ने। सुभान अल्लाह। जी बारी है दारुल मदीना वालों के लिए अल्फाज देखने की। जी दारुल मदीना वालों के लिए अल्फाज दिखाइए। हिलता, झुलता, लगता, उड़ता, मिलता। चलें जी कुछ मिलता है या कुछ हिलता है, क्या होता है देखते हैं सवाल क्या है।
इनका भी हमारे तो हिलाए नहीं होता, क्या नहीं होता ये आपने बताना है। हिलता। आपने जवाब दिया हिलता। जी दिखाइए सही जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 10 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना ने भी अपने स्कोर में। बारी है मोहम्मद अली एकेडमी टीम से सवाल करने की। आपके लिए देखिए अल्फाज क्या हैं। बढ़ता, रुकता, घटता, चलता, महकता। जी दिखाइए सवाल। इल्म बांटने से क्या होता है। बढ़ता। इल्म बांटने से बढ़ता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। जी जनाब 10 नंबर हासिल किए हैं। बारी है अगला सवाल करने की और अब सवाल होगा फैजान एकेडमी वालों से। आपके लिए अल्फाज देखते हैं इस बार हमारे पास क्या हैं। बकसरत, माजरत, बगावत, ज़हमत, नफरत। जी सवाल दिखाइए। मेहरबान लोग क्या कबूल कर लेते हैं। माजरत। इन्होंने कहा माजरत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मेहरबान लोग माजरत कबूल करते हैं, वरना तो लोग अक्सर दावत ही कबूल किया करते हैं जनाब। चलें जी, माजरत अगर कोई करे तो उसे जरूर कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मुआफ नहीं करता उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह हमें मुआफी मांगने वाला बनाए। आमीन। जी अगला सवाल होगा टीम दारुल मदीना से। दिखाइए इनके लिए अल्फाज क्या हैं। मिजाज, रिवाज, अनाज, इलाज, समाज। जी जनाब दिखाइए इतने सारे जीम को हमने करना क्या है। रोजा बीमारियों का क्या है। इलाज। जी जनाब दिखाइए जवाब क्या था। रोजा बीमारियों का इलाज है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। जी 10 मजीद नंबरों का इजाफा किया है टीम दारुल मदीना ने। सवाल की बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम से सवाल करने की। आइए इनके लिए देखते हैं अल्फाज क्या हैं। सीने, जीने, आंखों, दिल, तसव्वुर। जी सवाल भी दिखा दीजिए जी। किस में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, आंखों में मेरी आप समा जाइए आका। सीने। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है टीम ने अपने स्कोर में। बारी है फैजान एकेडमी से सवाल करने की। इस बार आप लोगों के लिए अल्फाज देखिए स्क्रीन पर। जमात खाना, घराना, कोहराना, समझाना, कैद खाना। चलें जी जमात खाना आता है या कैद खाना आता है। देखिए सवाल क्या है। हदीस पाक के मुताबिक दुनिया मोमिन के लिए क्या है। कैद खाना। देखते हैं जवाब क्या है। जी हाँ हदीस पाक के मुताबिक दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जी थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, जवाब दुरुस्त हो गया है। जी बारी है दारुल मदीना एकेडमी से सवाल करने की। आपके लिए देखिए अल्फाज। कुल, कुल, फुल, गुल, बुलबुल। चलें जी दिखाइए सवाल। बुलबुल ने उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। गुल गुल गुल। इनका जवाब नहीं है, देख लीजिए आप दोनों का जवाब है। ये फरमा रहे हैं। मशवरा कर ले। बिल्कुल करें, हमने कब मना किया आपको। गुल 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 गुल। देखते हैं जवाब क्या ये दुरुस्त है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। जी बारी है टीम मोहम्मद अली एकेडमी से सवाल करने की। देखिए आपके लिए अल्फाज। सैयारे, सूरज, सितारे, बादल, नजारे। सवाल दिखाइए। हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक सहाबा आसमाने हिदायत के क्या हैं। सितारे। आप लोगों ने कहा सितारे हैं। जी जवाब दिखाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है आखिरी सवाल करने की टीम फैजान एकेडमी। आपके लिए देखिए अल्फाज स्क्रीन पर। चाहत, राहत, उकताहत, नकाहत, दिक्कत। जी हासिद को कभी क्या नहीं होती। दिक्कत। टीम ने फैसला किया इसका जवाब दिक्कत है। दिखाइए सही जवाब क्या है। हासिद को कभी राहत नहीं होती। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। 10 नंबर हासिल नहीं किए बल्कि माइनस करवा दिए हैं। बारी है दारुल मदीना की टीम से आखिरी सवाल करने की। दूसरे राउंड का आखिरी सवाल दारुल मदीना वालों के लिए। अल्फाज दिखाइए। पिटता,
सोचता, दौड़ता, मचलता, हंसता। चलें जी, देखिए आप लोगों ने मचलना है, हंसना है या दौड़ना है, क्या करना है जी? सवाल दिखाइए दारुल मदीना वालों के लिए। बेवकूफ बोलकर क्या होता है? सोचता। जी जनाब, जवाब दिया है बेवकूफ बोलकर सोचता है। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। जी बारी है आखिरी सवाल करने की। देखिए आपके लिए अल्फाज क्या है हमारे पास? हिमाकत, बगावत, दौलत, समाअत, शुजाअत। जी सवाल दिखा दीजिए। इंसान की सबसे बड़ी क्या उसका ईमान है? दौलत। आपने कहा दौलत। जी दिखाइए जवाब। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबरों का इजाफा किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरे राउंड के आखिर में बच्चों ने कितना स्कोर कामयाबी के साथ हासिल कर लिया है। जी जनाब, दूसरे राउंड में टीम फैजान एकेडमी ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 130 पॉइंट्स। टीम दारुल मदीना ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया है 320 पॉइंट्स। टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने किसी से पीछे नहीं, इन्होंने भी दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और अपना स्कोर पहुंचाया 120 पॉइंट्स। यानी अब टीम फैजान एकेडमी और मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम के दरमियान मुकाबला सख्त है। दोनों के दरमियान सिर्फ 10 नंबरों का फासला है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, कैटेगरी राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। देखना यह है कि अगले राउंड में कौन कितना स्कोर बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि अगला राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड, एक्टिविटी राउंड, जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी बच्चों, तीसरे राउंड में आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है, क्योंकि बड़ी कमाल की एक्टिविटी है। करना क्या है, जरा गौर से मुझे देखिएगा। आपने अपनी अपनी टीम के साथ इस एक्टिविटी फ्लोर पर आना है। हम आपको बारी बारी इनवाइट करेंगे। तीनों बच्चे यहाँ पर शामिल होंगे हमारे साथ, एक के पीछे एक, और आपको हम देंगे 90 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, आपके पास 90 सेकेंड्स होंगे, यानी ईच पर्सन 30 सेकेंड्स। हर एक बच्चे के पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। आपने करना ये होगा, जैसे ही आपको कहा जाएगा कि आपका वक्त शुरू होता है, आपने दौड़कर यहाँ पर आना है और इन जंजीरों पर अल्लाह पाक की मुकद्दस नामों का ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। आपने यहाँ से तख्ती उठानी है और यहाँ पर आपने इसको प्लेस करना है। जिस नाम का जो मीनिंग्स है वो आपने प्लेस करना है। हर सही तख्ती लगाने पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, गलती करने पर कोई नंबर डिटेक्ट नहीं किए जाएंगे। लेकिन आपने ये सारा काम 30 सेकंड के अंदर अंदर करना है। जैसे ही आपको कहा जाएगा कि आपका वक्त खत्म हो रहा है, काउंटडाउन दिया जाएगा, तो आपने दौड़कर एक्टिविटी फ्लोर पर वापस आना है ताकि अगला बच्चा जाएगा। आप जितनी देर लगाएंगे अगला बच्चा तब तक नहीं जा सकेगा जब तक कि आप फ्लोर पर नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? यस। मजा आएगा? यस। कितने नंबर हासिल करेंगे? 330। ओहो, 330। जी हाँ जनाब, 33 तख्तियां इनके सामने लगी हुई हैं। लेकिन याद रहे, आप लोगों को इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये हर बारी में
तख्तियों को चेंज करेंगे। इस वक्त 33 लगी हुई है, दूसरी टीम के लिए भी 33 लगाई जाएगी और तीसरी टीम के लिए भी 33 लगाई जाएगी। तीनों के पास बराबर के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि 330 आपने नंबर गेन करने हैं तो आपने सारी तख्तियों के ट्रांसलेशन को दुरुस्त जगह पर प्लेस करना होगा। इज दैट क्लियर? आ जाए जनाब, फैजान एकेडमी की टीम पहले एक्टिविटी फ्लोर पर आ जाए। आपको हम काउंट डाउन देंगे, 90 सेकेंड्स का टाइम होगा आप लोगों के पास। जी, पहले अब्दुल समद भाई जाएंगे, फिर अरहम ज़ीशान भाई जाएंगे और फिर अब्दुल कदीर भाई जाएंगे। आपका 90 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो रहा है अब। जी जनाब, आप लोग हेल्प कर सकते हैं, इनको गाइड कर सकते हैं यहाँ से। चल रहा है बेटा, सब चल रहा है, हम आपको बताएंगे। जल्दी करेंगे, अब तक एक भी तख्ती नहीं उठाई है, एक भी तख्ती प्लेस नहीं की है। भाई आप लोग हेल्प कर सकते हैं यहाँ से। ओनली 5 सेकेंड्स रह गए हैं। काउंट डाउन मेरे साथ देंगे। 5 4 3 2 1। चले जी, जल्दी आइए, आप आइए, जल्दी आइए फ्लोर पर, जल्दी आइए ताकि दूसरा बच्चा जाएगा। जी देखते हैं कितनी तख्तियां ये लगाने में कामयाब होते हैं। अरहम भाई, उम्मीद है आपने फ्लोर पर खड़े खड़े कुछ प्लानिंग कर ली होगी। जल्दी करें, जल्दी करें, इतना स्लो करेंगे तो फिर नंबर कैसे हासिल करेंगे? आप लोग मदद कर सकते हैं। जल्दी 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 काउंट डाउन मेरे साथ देंगे, लेकिन घड़ी के मुताबिक देंगे, स्पीड से नहीं। 5 4 3 2 1। योर टाइम इज अप नाउ। जल्दी 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 आए, जल्दी आए, जल्दी आए, तख्ती ले आए। अल्लाहू अकबर, तख्ती ले आए, इनको दे दे तख्ती। जल्दी जाए, जल्दी जाए, जल्दी जाए। चलें जी, जल्दी करेंगे बेटा, वक्त बहुत शॉर्ट रह गया है। जल्दी करेंगे। 5 4 3 2 1। योर टाइम इज अप। अल्लाहू अकबर, प्लानिंग पहले से नहीं की लगता है और सिर्फ 4 तख्तियां लगी हैं। देखते हैं कितनी सही तख्तियां लगी हैं और कितनी गलत। पहली तख्ती लगाई है अल कुद्दूस, हर ऐब से पाक। क्या ये दुरुस्त है? 10 नंबर हासिल किए हैं जनाब। दूसरी तख्ती अल मलिक, बादशाह। क्या ये दुरुस्त है? 20 पॉइंट्स। तीसरी तख्ती अल मुहैमिन, हिफाजत फरमाने वाला। क्या ये दुरुस्त है? जी जनाब, 30 पॉइंट्स। और चौथी तख्ती लगाई है अल मुजिल्लू, जिल्लत देने वाला। माशाअल्लाह, 40 नंबर हासिल किए हैं। 4 तख्तियां सही प्लेस की हैं, 40 नंबर हासिल किए हैं फैजान एकेडमी वालों ने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वेल प्ले, माशाअल्लाह। बढ़ेंगे आप अपने फ्लोर की तरफ और हम इनवाइट करेंगे दारुल मदीना की टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर। जी जनाब, आइए आप लोग, लेकिन आपके आने से पहले जरा हम तख्तियां चेंज करते हैं। जी जनाब, बारी है दारुल मदीना वालों की और दारुल मदीना वालों के लिए काउंट डाउन देंगे, काउंटर चलाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। इनके काम लेने वाले के नीचे ये, हाँ ये क्या? वेरी गुड, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, यहाँ से हेल्प आउट कर रहे हैं जनाब। लगता है पहले से कुछ प्लानिंग कर ली है इन लोगों ने। हलाफिज का है? ये रहा, हलाफिज सबसे पहला ऊपर कोने में। ऊपर कोने में। फर्स्ट रो का फर्स्ट वर्ड। ऐसे भी आप हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल आजादी है आप लोगों को हेल्प करने में। हर तरीके से आप मदद कर सकते हैं। जल्दी करेंगे, काउंट डाउन देंगे जनाब। 5 करने के बाद 4 गनी, हाँ गनी वाला नहीं। 3 नहीं इधर 2 1। चलें जी, जल्दी आइए, जल्दी आप फ्लोर पर आइए। यहाँ से घूम कर आएंगे फ्लोर पर। चलें, थोड़ा सा आपको हमने चांस दे दिया है, जल्दी करेंगे मेरा बेटा। जल्दी मेरा बेटा, दूसरों को समझाने वाला खुद कंफ्यूज हो गया है इस वक्त। ऐसा होता है ऐसे कामों में। जल्दी करेंगे। किस पे आएगा बेहतरीन फैसला करने वाला? यार दूसरे उठा लो, सबसे पहले वजूद रखो। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। योर टाइम इज अप नाउ। जल्दी 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 आप फ्लोर पर, आप फ्लोर पर जल्दी आइए, जल्दी आइए। हल गफूर का
बहुत बख्शने वाला। अल गफूर। यार अब ये बहुत बख्शने वाला कहाँ मिलेगा, ये भी तो बताओ भाई इनको। ये रहा सामने। मंडली के बाद जिंदा करने वाला। हादी सामने। हादी लेफ्ट पे लेफ्ट पे लेफ्ट पे लेफ्ट पे। हम बहुत बख्शने वाला। 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप नाउ। जी जनाब, 3 तख्तियां लगाने में कामयाबी हासिल की है टीम दारुल मदीना ने, लेकिन क्या ये तीनों तख्तियां इनको नंबर दिलवाएंगी? क्या इन्होंने सही जगह पर मीनिंग्स को प्लेस किया है? आइए आपको चेक करवाते हैं। अल हफीज, हिफाजत फरमाने वाला, क्या ये दुरुस्त है टीम्स? जी हाँ, 10 नंबर हासिल किए हैं। अल वकील, कारसाज यानी काम बनाने वाला, बिल्कुल सही, 20 पॉइंट्स। और तीसरी तख्ती लगाई है अल गफूर, बहुत बख्शने वाला, क्या ये दुरुस्त है? 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है टीम दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद अली एकेडमी से आई हुई टीम से ये राउंड करवाने की, लेकिन उससे पहले इन तख्तियों को चेंज किया जाएगा। आप लोग एक्टिविटी फ्लोर पर आ जाइए बेटा। कैटेगरी राउंड। टीम योर टाइम स्टार्ट नाउ। जी जनाब, देखते हैं क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या प्लानिंग की है। नूर वाला पहली नीचे। तख्ती लगा ली है, यहाँ से मदद कर सकते हैं। आखिर का है। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ये रहा कैसे पता चलेगा? ये रहा का कुछ बता दो सही भाई, कहाँ ये रहा? नूर वाला नीचे नीचे नूर वाला। पूरा थर्ड लास्ट नीचे सबसे। जल्दी जल्दी जल्दी, काउंट डाउन जल्दी, देंगे। जल्दी। 5 4 3 2 1 योर टाइम इज अप नाउ। जल्दी से फ्लोर पर चलें जी। एक बच्चा आया है, दूसरा बच्चा फ्लोर पर पहुंचा है। जल्दी करेंगे बेटा, अरे इनकी भी मदद करो। कुदरत वाला नहीं, कुदरत वाला। जल्दी करेंगे। पहले बच्चे ने बहुत अच्छी लगाई है तख्तियां। हाँ ये जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। 2 उठा लो। गनी करने वाला उठो। हर चीज पर गालिब। हर चीज पर गालिब। हर काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1 जी जनाब, टाइम से पहले आ गए हैं। गनी करने वाला। जल्दी 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 ये रहा मुगनी मुगनी। जल्दी करेंगे, मदद कर सकते हैं आप लोग। नहीं ये नहीं है। जल्दी करेंगे बेटा, बातें। काउंट डाउन देंगे। जल्दी। 5 4 वो देखो 3 बराबर में। 2 1 टाइम इज अप नाउ। चलें जी, अच्छी तख्तियां लगाई हैं, अच्छी कोशिश की है टीम ने, भरपूर एक्टिविटी दिखाई है, और देखना यह है कि इस एक्टिविटी ने इन्हें कितनी कामयाबी दिलाई है। जी मेरे साथ शामिल रहेंगे। अल बातिन, छुपा हुआ, क्या ये दुरुस्त है? जी जनाब, 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल जाहिर, हर चीज पर गालिब, क्या ये दुरुस्त है? जी 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल आखिर, सबके बाद, क्या ये दुरुस्त है? 30 पॉइंट्स। सुभान माशाअल्लाह। अल कादिर, कुदरत वाला, क्या ये दुरुस्त है? 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अनबिलीवेबल, अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर इस राउंड का। अल मुगनी, गनी करने वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी माशाअल्लाह, 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल अफ़, मुआफ फरमाने वाला, मुआफ करने वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी जी जनाब, 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला, जी दुरुस्त है। 70 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और अन-नूर, नूर वाला, क्या ये दुरुस्त है? जी जी जनाब, कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं? 80 पॉइंट्स का इजाफा किया है इस राउंड के आखिर में अपने स्कोर में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त, माशाअल्लाह। जी बच्चों, कैसा लगा आपको ये राउंड? बहुत अच्छा। जी तो आइए आपको दिखाते हैं इस राउंड के आखिर में हमारा स्कोर क्या है। जी जनाब, तीसरे राउंड का स्कोर हमारी स्क्रीन पर फैजान एकेडमी ने तीसरे राउंड में बनाए हैं 40 पॉइंट्स, और इनका टोटल स्कोर हो गया 170 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने इस राउंड में थोड़ी एक्टिविटी कम दिखाई है, थोड़ी कमजोरी दिखाई है, और हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स।
आपका स्कोर पहुंचा है 350 पॉइंट्स। और मोहम्मद अली एकेडमी ने बेहतरीन कमबैक किया है, इस राउंड में बनाए हैं 80 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया है 200 पॉइंट्स। अब बारी है हमारे चौथे राउंड की, मगर याद रहे चौथे राउंड के आखिर में एक टीम एलिमिनेट हो जाएगी, एक टीम रुखसत हो जाएगी और वो टीम तीनों में से कोई भी हो सकती है। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राउंड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। आइए आपको बताते हैं चौथे राउंड में होना क्या है और चौथा राउंड है क्या। चौथे राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी बच्चों, इस राउंड के अंदर करना क्या है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। मैंने आपके तीनों के सामने एक सवाल रखना है, आपने बजर बजाकर उसका जवाब देना है। अब सुनिए जरा मैकेनिज्म क्या है, आपका स्कोर कैसे हमारा होगा जरा ये समझ लीजिए। जिस टीम ने बजर बजाया उसने जवाब देना होगा, अगर तो वो सही जवाब दे देगी तो वो हासिल करेगी 30 पॉइंट्स, और अगर आपने बजर बजाने के बाद सही जवाब नहीं दिया तो आपके स्कोर में से 10 नंबर माइनस हो जाएंगे और बकिया दोनों टीमों के स्कोर में 10-10 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा। तो है ना मजेदार राउंड? चलें जी, देखते हैं कौन किसके पॉइंट्स अपनी तरफ करता है या अपने पॉइंट्स में इजाफा करने की कोशिश करता है। जी चौथे राउंड का पहला सवाल, रुकू से सीधा खड़े होने को क्या कहते हैं? बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने। जी जनाब। कौमा। आपने कहा कौमा, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है, वैसे ही नंबरों की जरूरत थी। अगला सवाल सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज्यादा इबादत करने की वजह से क्या कहा जाने लगा? बजर बजाई है एक मर्तबा फिर टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने। इमामतुल मस्जिद। नहीं जनाब, इसका जवाब है हमामतुल मस्जिद। का जवाब हम दुरुस्त मानते हैं। 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, टीम ने अपने स्कोर में एक मर्तबा फिर 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है जनाब। बारी है सवाल सुनने की, गौर से सुनिएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज्यादातर कैसे बैठा करते? बजर बजाई है फैजान एकेडमी ने। सजदे की तरफ। सजदे की तरफ। सजदे की तरफ कैसे बैठना होता है मेरा बेटा? गलती हुई है जनाब, 10 नंबर माइनस होंगे और 10-10 नंबर दोनों टीमों को मिलेंगे क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। बारी है अगला सवाल करने की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस सिलसिले के बुजुर्ग हैं? बजर बजाई है दारुल मदीना ने। सिलसिला चिश्तिया। जी दारुल मदीना ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। 30 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है दारुल मदीना के स्कोर में। बारी है अगला सवाल सुनने की। कुरान पाक की एक सूरत सूरह हदीद है, हदीद का माना? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी यानी असा कितने गज लंबा था? बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी ने। 10 गज। और आप ये नंबर हासिल कर चुके हैं। अगला सवाल जरा गौर से सुनिए जनाब, पानी को अरबी में क्या कहते हैं? बजर बजाई है दारुल मदीना ने। माउन। आपने कहा माउन और आपका जवाब दुरुस्त है।
है? बकरी या बकरे की खाल पर बैठने से क्या फायदा मिलता है? किस सूरत को महीने के शुरू में पढ़ने से पूरा महीना सख्तियों से हिफाजत होती है? कुरान पाक की बड़ी मशहूर सूरत। चलें जी, अगला सवाल सुनिए। सलाम में पहल करने वाला किस? सवाल पूरा कंप्लीट नहीं सुना, बजर बजाती है मोहम्मद अली एकेडमी की टीम ने। सवाल पहले बताएंगे और फिर जवाब बताएंगे हमें। सलाम में पहल करने वाला किस चीज से बरी यानी आजाद होता है? तकब्बुर। आपने कहा तकब्बुर से आजाद होता है, और जो जवाब दिया वो दोनों बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स गेन किए हैं। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, इस हदीस पाक में किस चीज के लेने और देने वाले को? जी जनाब, सवाल भी कंप्लीट करेंगे और जवाब भी देंगे। दारुल मदीना ने बजर बजाई है। देने वाले को, लेने और देने वाले को जी जनाब, सवाल था मेरे पास। अर्राशी वल मुर्तशी, इस हदीस पाक में किस चीज के लेने और देने वाले को जहन्नमी कहा गया? आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे बल्कि 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे और दोनों टीमों के स्कोर में 10-10 नंबरों का इजाफा होगा। जी नाजरीन, आइए आपको बताते हैं चौथे राउंड के आखिर का स्कोर क्या है। मोहम्मद अली एकेडमी ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और चौथे राउंड में इनका स्कोर हुआ 140 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया है 340 पॉइंट्स। और दारुल मदीना वालों ने इस राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हुआ 410 पॉइंट्स। टीम फैजान एकेडमी वालों ने एक जवाब दिया, वो भी गलत दिया। दूसरे से जो हेल्प मिली 10 नंबरों की, वो भी इसलिए बराबर हो गई और आपका स्कोर रहा इस राउंड में 0-0 और आपका पिछला स्कोर था 170 पॉइंट। लिहाजा आपका स्कोर आगे नहीं बढ़ा। कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना। इस वक्त तो आप लोग रुखसत हो रहे हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत से तहाइफ हम आपको दे रहे हैं। आइए अपने तहाइफ वसूल कीजिए। चलें जी, फैजान एकेडमी वालों को हम रुखसत करेंगे। खूबसूरत से तहाइफ ये आप लोगों के साथ जाएंगे माशाल्लाह। चलें जी, ये आपके लिए, ये मेरा बेटा आपके लिए, और ये हमारे, आ जाओ मेरा बेटा, शाबाश। चलें जी, खूबसूरत से तारीफ ये आपके साथ जाएंगे। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। जी तो नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है 5वें राउंड तक और 5वें राउंड में हमारे साथ होती है 2 टीम्स और इस बार हमारे साथ हैं दारुल मदीना और टीम मोहम्मद अली एकेडमी। जी जनाब, इस राउंड में हम आपको 4 कैटेगरीज देंगे सवालात के लिए, ठीक है? 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी, आप उनमें से किसी भी कैटेगरी के सवाल को ले सकते हैं। हर कैटेगरी का सवाल, पहला सवाल है 10 नंबर का, दूसरा सवाल है 20 नंबर का, तीसरा सवाल है 30 नंबर का, चौथा सवाल है 40 नंबरों का और 5वां सवाल है 50 नंबरों का। अगर एक कैटेगरी दारुल मदीना ने ली और उसी कैटेगरी से मोहम्मद अली की टीम भी चाहती है सवाल, तो अब दूसरा जो सवाल होगा वो कितने नंबर का होगा? 20 नंबरों का। और अगर सेम कैटेगरी से तीसरा सवाल दारुल मदीना ने लिया तो अब वो सवाल कितने नंबरों का होगा? 30 नंबरों का। लेकिन याद रहे, जितने नंबरों के सवाल हैं, अगर गलत जवाब दिया तो उतने ही नंबर आपके माइनस भी हो जाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि सवालात की कैटेगरीज क्या हैं। सवालात की कैटेगरी है अंबिया इकराम, मदीना शरीफ, खुलफाए राशिदीन और मक्का शरीफ। चारों कैटेगरी में से कैटेगरी चूज करेंगे दारुल मदीना वाले 10 नंबरों के सवाल के लिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। सवाल है पहला, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो का इंजील में क्या नाम जिक्र हुआ? काफी। जी जवाब दिया काफी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में। बारी है टीम मोहम्मद अली एकेडमी से सवाल करने की। कैटेगरी चूज करेंगे खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन। 20 नंबरों का सवाल होगा, अगर गलती की तो 20 नंबर माइनस भी होंगे। सवाल है, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी उम्र में विसाल फरमाया? 63। 20 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह।
जी कैटेगरी चूज करेंगे दारुल मदीना वाले। खुलफाए राशिदीन। सवालात की कैटेगरी खुलफाए राशिदीन से सवाल है दारुल मदीना वालों आपके लिए 30 पॉइंट्स का। इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख शहादत क्या है? 18 ज़ुल्हिज्जा। आपने कहा 18 ज़ुल्हिज्जा, सही प्रोनाउंसिएशन है 18 ज़ुल्हिज्जा। आइंदा ख्याल रखेगा। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। 30 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना की टीम ने अपने स्कोर में। बारी है टीम मोहम्मद अली एकेडमी की। कैटेगरी चूज करेंगे खुलफाए राशिदीन। सेम कैटेगरी, बहुत बड़ा रिस्क है ये। 40 पॉइंट्स प्लस या 40 पॉइंट्स माइनस। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का जन्नत में क्या नाम है? सिराज। आपने जवाब दिया सिराज। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। बेहतरीन इजाफा किया है, बेहतरीन कमबैक। 40 नंबर एक साथ बढ़ाए हैं। बारी है अगले सवाल की और अगला सवाल करेंगे दारुल मदीना की टीम से। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्कतुल मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा? खुलफाए राशिदीन। सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी, बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। खुलफाए राशिदीन की कैटेगरी चूज की है। इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कब पैदा हुए? जल्दी करोगे मेरा बेटा, वक्त खत्म हो रहा है। जल्दी करेंगे, काउंटडाउन देंगे। 5 4 चलें जनाब। जवाब दिया है 6 रजब, जबकि सही जवाब है वाक़या फील के 30 साल के बाद मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम दुनिया में तशरीफ लाए। गलती हुई है जनाब। 50 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बहुत बड़े लॉस का सामना हुआ है टीम दारुल मदीना को। बारी है सवालात करने की मोहम्मद अली एकेडमी की टीम से। जी बेटा, कैटेगरी चूज करेंगे अंबिया कराम। अंबिया इकराम। 10 नंबरों का सवाल होगा जनाब। हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का नाम बताएं। मशवरा करने की इजाजत होगी। बीबी सारा। आपने जवाब दिया बीबी सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का मजीद इजाफा किया है। चौथा सवाल है टीम दारुल मदीना से। सवालात की कैटेगरी चूज करें। अंबिया अलैहिस्सलाम। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। 20 नंबरों का सवाल होगा जनाब। मेराज की रात हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। आपने बताना यह है कि ये मुलाकात किस आसमान पर हुई थी? चौथे आसमान पर। और आपका ये जवाब आपके स्कोर से 20 नंबरों का इजाफा कर गया है। सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। बारी है चौथा सवाल करने की टीम मोहम्मद अली एकेडमी। सवालात की कैटेगरी चूज करें बेटा। अंबिया कराम। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। 30 नंबरों का सवाल होगा और 30 नंबर माइनस होंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम किया करते थे? बकरियां चराते थे। आपने कहा बकरियां चराते थे। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? 80% कॉन्फिडेंट हैं। नाजरीन, बड़ा रिस्क लिया है। 30 पॉइंट्स प्लस या 30 पॉइंट्स माइनस। और आपका जो जवाब है वो जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आखिरी सवाल की बारी है टीम दारुल मदीना। सवालात की कैटेगरी चूज करें। मदीना शरीफ। आपसे सवाल है, अगर कोई मदीना शरीफ को एक मर्तबा यस्रिब कह दे तो उसे कफारे में कितनी मर्तबा मदीना कहना चाहिए? 10 मरतबा। आपने कहा 10 मर्तबा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा किया टीम दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। बारी है आखिरी सवाल करने की टीम मोहम्मद अली एकेडमी। कैटेगरी बताएंगे सवालात की। मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा। 20 नंबरों का सवाल होगा। सवाल आपसे यह है, जबले उहद पर अल्लाह पाक के किस नबी का मजार पाक है? जल्दी करेंगे, वक्त खत्म हो रहा है बेटा, जल्दी करेंगे। जबले उहद पर अल्लाह के किस नबी का मजार है? काउंटडाउन देंगे। 5 4 हजरत याकूब 3। आपने कहा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और सही जवाब है हजरत। जी आप बताएंगे।
हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम। गलती हुई है जनाब, टीम दारुल मदीना ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन 20 नंबर माइनस होंगे मोहम्मद अली एकेडमी की टीम्स के। इसके साथ नाज़रीन हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के आखिर तक कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हुआ। दारुल मदीना की टीम के 5वें राउंड का स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर बना 430 पॉइंट्स। और मोहम्मद अली एकेडमी की टीम ने बड़ा ही बेहतरीन कमबैक किया है, 5वें राउंड में बनाए हैं 80 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 420 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे आखिरी राउंड की, फैसला कुन राउंड की, जिसका नाम है आमना सामना। अब इस राउंड में करना क्या है जरा सा सुनिएगा। मैं आप दोनों के सामने सवाल रखूंगा, दोनों टीम के सामने, ठीक है? जो पहले बजर बजाएगा, जिसकी बजर बीप करेगी, उसने जवाब देना है। जवाब सही होगा 10 नंबर मिलेंगे, गलत होगा कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? कटेगा भी नहीं। लेकिन दोनों तरफ से सवाल सही हो या गलत हो, दोनों बच्चे सफल होंगे। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 4 चौथी एपिसोड का आखिरी राउंड, आमना सामना। पहला सवाल आप दोनों टीमों से, फिरौन किस दरिया में डूबकर मरा? बजर बजाई है दारुल मदीना वालों ने, जवाब दीजिए। दरिया नील। दरियाए नील, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबरों का इजाफा हुआ है दारुल मदीना की टीम में। इस वक्त पलड़ा दारुल मदीना वालों का भारी हो गया है, 10 नंबरों का इजाफा हुआ है। बारी है अगला सवाल करने की। कुरानी लफ्ज उन्जिला का माना बताएं। बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली एकेडमी। उतारा गया। आपने कहा इसका माना है उतारा गया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। बल्लड़ा बराबर हो गया है, 10 नंबरों का इजाफा किया है टीम मोहम्मद अली एकेडमी ने। अगला सवाल सुनिए। हदीस पाक में नींद को किसकी बहन कहा गया? जी, बजर बजाई है मोहम्मद अली एकेडमी। मौत। मौत को नींद की बहन कहा गया, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी, दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। अगला सवाल है, जिसने अल्लाह पाक की रिजा के लिए इल्म हासिल किया, अल्लाह पाक उसको उतना अता फरमाएगा जो उसको काफी होगा। ये किस बुजुर्ग का कौल है? बजर बजाई है एक मर्तबा फिर मोहम्मद अली एकेडमी ने। मुसलसल तीसरा सही जवाब देंगे अगर ये जवाब दुरुस्त हुआ तो। आला हजरत। आपने कहा आला हजरत, गलती हुई है जनाब। ये कौल है हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बच्चे सफल होंगे। फिक़ह मालिकी के इमाम कौन हैं? बजर बजाई है दारुल मदीना ने। इमाम मालिक बिन अनस। हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। लैलतुल जायजा किस रात को कहा जाता है? अगर बजर नहीं बजाएंगे तो दोनों के 10-10 नंबर माइनस नहीं करूंगा। मदद कर सकते हैं? नहीं। जन्नत में जो तामीरात हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला गारा किस चीज का होगा? नजीबुत तरफैन किसे कहते हैं? जी, बजर बजाई है दारुल मदीना ने। हसनी हुसैनी सैयद। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। दारुल मदीना आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। सबसे बड़ी अक्लमंदी परहेजगारी है और सबसे बड़ी हिमाकत गुनाह हो नाफरमानी है। ये कौल किसका है? बजर बजाई है टीम दारुल मदीना ने। आला हजरत। आपने कहा आला हजरत, जवाब गलत है जनाब। ये कौल है हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। 10 नंबरों की लीडिंग है दारुल मदीना के पास। बारी है अगला सवाल करने की। अल्लाह पाक से कलाम करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस पहाड़ी पर तशरीफ? जी, बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली ने। तशरीफ ले जाया करते थे कोहे तूर। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। रियाकारी का कोई एक इलाज बताएं। बजर बजाई है जनाब मोहम्मद अली एकेडमी की टीम ने। नेकियों का छुपाना। नेकियों को छुपाना, जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। याद रहे नाजरीन, मोहम्मद अली एकेडमी की टीम इस वक्त 40 नंबरों से हमारे साथ है और दारुल मदीना वाले 30 नंबरों के साथ हैं। सवाल गौर से सुनिएगा। अल्लाह पाक का इरशाद है कूनू मअस-सादिकीन, तर्जमा बताएं। बजर बजाई है दारुल मदीना वालों ने। सबर करने वाला। नहीं जनाब, यहाँ पर सब्र कहाँ से आ गया? सादिकीन का जिक्र हो रहा है। सादिक कहते हैं सच्चों को, तर्जमा होगा सच्चों के साथ हो जाओ। गलती हुई है जनाब, नंबर कोई नहीं कटेगा, लेकिन दोनों तरफ से बच्चे सफल होंगे। बेहतरीन चांस था दारुल मदीना के पास कि ये मुकाबले को टाई कर देते। पिछले राउंड्स तक दारुल मदीना एक बेहतरीन मार्जिन से आगे था, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद अली की टीम ने बेहतरीन कमबैक किया है। बारी है अगला सवाल करने की
और अगला सवाल है, हामिलाने अर्श यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्तों के कितने पर हैं? बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली अकेडमी ने। 4। आपने कहा 4। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 नंबरों का मजीद इजाफा कर दिया है, 20 पॉइंट से लीडिंग पोजीशन पर हैं। नमाज के फर्ज से पहले अदा की जाने वाली सुन्नतों को क्या कहा जाता है? जी बजर बजाई है दारुल मदीना ने। नंबरों की वैसे ही जरूरत है। सुन्नत कबलिया। सुन्नत कबलिया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबरों का इजाफा किया है दारुल मदीना ने अपने स्कोर में। नमाजी के सामने ऐसी चीज रखना जिसके आगे से दूसरे बंदे का गुजरना जायज हो, उसे क्या कहते हैं? बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली अकेडमी। सुतरा। उसको सुतरा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। 10 नंबरों का इजाफा किया है। बारी है अगला सवाल करने की। लास्ट 2 सवालात हैं और मुकाबला ये है नाजरीन, अगर ये दोनों सवालात के जवाबात टीम दारुल मदीना दे देती है तो ये मुकाबला टाई हो जाएगा, और अगर एक भी जवाब टीम मोहम्मद अली अकेडमी देती है तो ये मुकाबला टीम मोहम्मद अली अकेडमी की जीत जाएगी। सवाल गौर से सुनिएगा और ध्यान से बजर पर हाथ रखिएगा। वालिदैन को रहमत भरी नजरों से देखने वाले को हदीस पाक के मुताबिक किस नेक अमल का सवाब मिलेगा? बजर बजाई है टीम मोहम्मद अली अकेडमी ने। हज मकबूल। आपने कहा हज मकबूल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल, 15 सवाल चूंकि हमारे आखिरी राउंड में होते हैं, आखिरी सवाल कर ही लेते हैं। फराइज के बाद सब अमाल में अल्लाह पाक को कौन सा अमल ज्यादा पसंद है? इस बार बजर बजाई है, बड़ी देर की है मेहरबा आते आते। जी टीम दारुल मदीना ने बजर बजाई है, बताइए जवाब। किसी मुसलमान का दिल खुश करना। किसी मुसलमान का दिल खुश करना, और हम आपका दिल खुश करेंगे क्योंकि आपके लिए बेहतरीन तहाइफ हमने तैयार कर रखे हैं। हमारी मजलिस ने आपके लिए जबरदस्त तहाइफ तैयार कर रखे हैं और टीम मोहम्मद अली अकेडमी ये हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ेरो चलें, आप अपने हाथों से हमारे दारुल मदीना वालों को तोहफा देंगे। शाबाश। चलें जी, माशाअल्लाह। आप अपने दूसरे भाई को दें, मुबारकबाद भी दें एक दूसरे को। शाबाश। इसी के साथ नाज़रीन हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर कैटेगरी राम। ज़ेरो ज़बर